All right. So, which of the following is least likely a combination of quality of financial report and quality of earnings? So let me first explain what is financial reporting quality and financial earning quality. First, financial reporting quality. Reporting quality मतलब जो reports, income statement, balance sheet and cash flow which is being given to us or overall annual reports which are given to us, are they properly made? Are they trustable? Are they reliable? उसमें कुछ गफला नहीं है ना. That is financial reporting quality. सो उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी में बेस्ट वाला जो है वो है कंप्लायंट भी एंड कोई मतलब कंप्लायंट भी एंड जेन्युइनली शोइंग यू द रियलिटी. मतलब क्या होता है कभी कभी कि इन द आईएफआरएस एंड द गैप समटाइम्स यू आर अलाउड टू यूज कपल ऑफ मेथड्स. फॉर एग्जांपल इन्वेंटरी में यू कैन आईएफआरएस में यू कैन यूज फीफो एंड लीफो बोथ. स्ट्रेट लाइन मेथड, डबल डिक्लाइनिंग मेथड कैन ऑल्सो बी यूज इन द डेप्रिसिएशन. तो कौन सा मेथड इज जेन्युइनली रिफ्लेक्टिंग द ट्रू रियलिटी वो यूज करना. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट वन कि नॉट ओनली कंप्लायंट बट ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द ट्रू रियलिटी विच इज कॉल्ड इन द टेक्स्ट बुक एज डिसीजन यूजफुल. So in the financial reporting, the best one is compliant and decision useful. Decision useful matlab I'm just saying compliant and showing the true picture, showing the true reality. Second one is compliant but नाम के लिए compliant. बस जो rules है वो follow किया but just followed the letter of the law but not the spirit of the law. बस दो मेथड में से कोई भी यूज चूज किया बट आई चोज द मेथड I mean, which is allowed by the gap on the IFRS, but not reflecting the true reality. So, as the true reality is not being pictured in that report, हाँ report compliant है IFRS and gap के साथ, but that report is not reflecting the true reality. So that is called as compliant, but not decision useful. Okay, उसके बाद not compliant. इसमें भी actually there are two things in the not compliant, but mistake से not compliant. ओके, मतलब जानबूझ के नहीं, ऑडिटर ने पॉइंट आउट नहीं किया, सो दैट इज मिस्टेक से नॉट कंप्लायंट. एंड लास्ट वन इज लाइक जानबूझ के नॉन कंप्लायंट मतलब फ्रॉड किया आपने. सो उसके बाद नॉन कंप्लायंट में देयर आर टू थिंग्स, एक नॉर्मल बाय मिस्टेक एंड देन नॉन कंप्लायंट बाय फ्रॉड. सो ऑब्वियसली दिस इज द वर्स्ट वन एंड यहाँ पे दिस इज द बेस्ट वन. सो इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी वो यू वांट द रिपोर्ट्स to be not only compliant but reflecting the true reality, not hiding anything. And the worst case is like fraudulent. What is financial earning quality? Financial earning quality matlab the earnings, that is the profit, which we call it net income, should be high and not only high, it should be sustainable. मतलब ऐसा नहीं कि ये टाइम कुछ भी करके बूस्ट कर दिया नेट इनकम और बोल दिया नेट इनकम हाई. कैसे कर सकते हो बूस्ट नेट इनकम की डेप्रिसिएशन कम दिखा दो, बैड डेट एक्सपेंस कम दिखा दो, मतलब दिखा के नेट इनकम बढ़ाया नहीं है. नेट इनकम जेन्युइनली हाई एंड सस्टेनेबल है. So that is what is called as earning quality is high. So earning quality would be higher if net income is higher and it is sustainable. Okay. It is going to persist. So higher net income and persistent net income is called as good earning quality. And good reporting quality matlab the financial report should not only be compliant, but they should also be decision useful because they are reflecting the true reality and not window dressing वाला concept नहीं होना चाहिए. ना एक चीज ऑटोमेटिकली है कि अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट, सॉरी, अगर नेट इनकम हाई एंड सस्टेनेबल होना चाहिए, if the net income should be higher and sustainable, it is absolutely necessary that the reports should be good and clean. It's like डॉक्टर के मैं पास जा रहा हूं और डॉक्टर मुझे वो मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स देख के मुझे कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. Now, whether I would be like recovering or not, whether the medicines would be effective or not, is dependent obviously first on the reports. कि वो जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स की जो नंबर है, जो पैथोलॉजी ने रिपोर्ट किया था, वो नंबर मैनिपुलेटेड है या नहीं, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट मैटर्स. सो द इंपॉर्टेंट थिंग विच इज प्रोबेबली वाज टेस्टेड इन दैट क्वेश्चन इज कि अगर अर्निंग क्वालिटी हाई चाहिए तो रिपोर्ट्स के नंबर जेन्युइन होने चाहिए. दैट इज रिपोर्टिंग क्वालिटी हैज टू बी हाई, देन ओनली द अर्निंग क्वालिटी कुड बी हाई. मैं ये नहीं बोला अर्निंग क्वालिटी वुड भी है. अगर रिपोर्टिंग क्वालिटी हाई है मतलब रिपोर्टिंग इज जेन्युइन, उसके बाद हम चेक करेंगे कि नेट इनकम हायर है, सस्टेनेबल है, तो ये अर्निंग क्वालिटी भी हाई है. लेकिन अगर नेट इनकम हायर नहीं है या फिर सस्टेनेबल नहीं है तो देन विल कॉल इट क्योंकि रिपोर्टिंग वाज जेन्युइन बट अनफॉर्चुनेटली नेट इनकम इज नॉट दैट हाई, सो अर्निंग क्वालिटी इज लोअर. आई रिपीट वन मोर टाइम. फर्स्ट, financial report
ये तो क्लीन होने ही चाहिए. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी शुड बी हायर. दैट मीन्स द रिपोर्ट्स कंप्लायंट होने चाहिए. गैप, आईएफआरएस, व्हाटएवर. हेडेक हो रहा है काफी. एंड सेकंड, इट शुड बी डिसीजन यूजफुल. शुड बी रिफ्लेक्टिंग द ट्रू रियलिटी. उसके बाद we'll analyze the numbers and find out कि okay, net income is higher and sustainable, good, earning quality is good. Or net income is higher, sorry, net income is neither higher nor sustainable. That means the earning quality is lower. So basically अगर रिपोर्ट्स खराब है तो अर्निंग ऑब्वियसली खराब ही है. अगर रिपोर्ट्स आर फेक, रिपोर्ट्स में मैनिपुलेशन हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली द अर्निंग क्वालिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी बैड. ओके, सो बेसिक द कंसेप्ट ओवर हियर इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी खराब है मतलब रिपोर्ट उठा के कचरे में फेंक दो. उसको नेट इनकम का फिगर हायर लोअर देखने में पॉइंट ही नहीं अगर रिपोर्ट मैनिपुलेटेड है. तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी हाई होना, गुड होना इज अ बेसिक थिंग. अगर वो है उसके बाद देखेंगे कि अर्निंग क्वालिटी इज गुड या अर्निंग क्वालिटी इज बैड. इज दिस पॉइंट क्लियर गाइस? रेज हैंड. उसके बाद विल सी द क्वेश्चन. आई थिंक इज दिस पॉइंट क्लियर कि फॉर द अर्निंग क्वालिटी टू बी चेक कि नेट इनकम हायर है, सस्टेनेबल है, ये चेक करने से पहले रिपोर्ट जेन्युइन है कि नहीं है ये चेक करना मस्ट है. इज दिस पॉइंट क्लियर? ऑलराइट, सो लेट्स सी. So which of the following is a least likely combination? Okay, मतलब which of the following is a wrong statement? So look at the first one. Reporting is फालतू, reporting is खराब, एंड अर्निंग इज सस्टेनेबल. हो ही नहीं सकता. अभी तो मैंने डिस्कस किया, अगर रिपोर्ट फालतू है, रिपोर्ट में जेन्युइनिटी नहीं है, देन यू विल नॉट इवन लुक एट द अर्निंग्स बिकॉज यू नो कि नंबर्स मैनिपुलेटेड है, तो नेट इनकम देखे क्या. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस पॉसिबिलिटी वाज नॉट देयर. रिपोर्टिंग इज फालतू, नॉट कंप्लायंट मतलब फालतू. अर्निंग्स आर सस्टेनेबल एंड एडिक्वेट मतलब हायर. अगर रिपोर्ट फालतू है तो अर्निंग क्वालिटी हम देखेंगे ही नहीं बिकॉज रिपोर्ट फालतू है. रिपोर्ट अच्छा होना इज अ बेसिक थिंग. So this was a wrong statement and hence we are looking for wrong statement. So this was the answer. मैं बता रहा हूँ बीएनसी में क्या रॉन्ग था. आई मीन बीएनसी कैसे करेक्ट थे. बट हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज दैट ए वाज द आंसर, ए वाज द रॉन्ग स्टेटमेंट? रीजन प्लीज, आई वांट टू सी बिकॉज़ इसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है क्वेश्चन में कितने लोगों ने ब्रेक थ्रू किया. गुड. लेट मी एक्सप्लेन द सेकंड वन. रिपोर्टिंग इज नॉट कंप्लायंट मतलब रिपोर्टिंग इज फालतू. सो अगर रिपोर्टिंग फालतू है तो इट कुड बी फ्रॉडुलेंट. ये वाले जो लास्ट वाला केस था, reporting is not compliant and fraudulent. So there's this possibility that reports are faltu because they are fraud. So this was a correct statement. We are looking for a wrong statement. Last one, C1. Reporting is compliant. मतलब गैप के रूल्स के हिसाब से रिपोर्टिंग किया है, बट अमाउंट ऑफ अर्निंग्स इज एक्टिवली मैनेज्ड. मतलब यहां पे वो जो डिसीजन, मतलब रियलिटी है ना, रियलिटी उसको हाइड किया गया है. So over here, the reporting has been made compliant with the GAP and IFRS, but it is just following the letter of the law, not the rule of, I mean, not the spirit of the law. So over here, basically the reports are compliant with whatever the rules the American accounting standards GAP has been made, but within still in the rule they are earnings. They are still managing the earnings. They are not doing any manipulation. They are hiding the true reality. जैसे मैंने बोला कि डबल डिक्लाइनिंग यूज किया जब स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना था, लीफो यूज किया जब फीफो यूज करना था. नाउ गैप में सपोज दोनों अलाउड है, but you as a company should choose the one which is more applicable for you, not the one which could simply smoothen your earnings. So instead of using the one which is applicable, instead of choosing the one which is going to reflect the true reality, if you choose the one which will smoothen the earnings मतलब stabilize the earnings, will look like कि मेरे कंपनी का प्रॉफिट तो स्टेबल है. So instead of choosing the right uh, depreciation strategy or the inventory accounting strategy which could reflect the true reality, if you choose the one which will simply smoothen the earnings, you are hiding the true reality. So this was a fact. Compliant but not decision useful. So even this was there. Sorry. So even this was there. So second one was there कि not compliant है, which is nothing but fraud. This is also there. As well as reporting is compliant but not following the spirit of the law. This two were there. This was not possible कि अगर reports are not compliant, obviously the earnings quality is going to be bad. फालतू report है तो earning देखेंगे नहीं, and hence from that perspective A was the answer. Any doubt guys? Raise hand. Deep, I guess some has doubt. Yeah, Deep, go on.
Any doubt, guys? Raise hand please if you have any doubts. All right. तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से, मतलब इफ यू हैव सीन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी, ये क्वेश्चन वाज इजी बिकॉज ऑप्शन ए में ही पता चल रहा था कि अगर रिपोर्टिंग क्वालिटी फालतू है तो अर्निंग क्वालिटी फालतू होगी, अर्निंग क्वालिटी कैन नॉट बी सस्टेनेबल एंड एडिक्वेट। सो इफ यू हैव सीन दैट चैप्टर देन दिस क्वेश्चन वाज इजी। मैं इसके लिए क्वेश्चन को इजी नहीं बोला, मैं क्लास में मैंने ये चैप्टर रिकॉर्डिंग से किया था, क्लास में हमने ये चैप्टर लाइव नहीं किया, सो आई एम नॉट कॉलिंग दिस क्वेश्चन अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट इफ यू हैव सीन द रिकॉर्डिंग, इफ यू हैव रेड द चैप्टर, दिस क्वेश्चन वाज इजी, आंसर वाज ई।